Hello students, we are doing chapter Consumers Equilibrium Utility Approach. Today is our last chapter, last class, last lecture और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट लेक्चर में हमने किया था टू कमोडिटी केस. व्हाट इज टू कमोडिटी केस? व्हेन अ कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग टू कमोडिटीज साइमल्टेनियसली, at what point he will be at rest, at what point he will attain equilibrium, he or she, at what point he will say that's it, I need not more. Economic condition इसकी होती है when MUX by PX equal MUY by PY. That means the ratio of marginal utility and price of respective commodities are equal to each other. अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस. पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस टॉपिक. और उसके बाद हमने ये भी किया था व्हाट हैपन्स व्हेन MUX इज ग्रेटर देन MUY by PX and MUY by PY is less than MUY by PY. That means MUX by PX is not equal to MUY by PY. Two conditions, greater and less. Page number 25. Page number 25. Question number 10. 3-mark question. A consumer consumes only two goods, X and Y. At a consumption level of these two goods, he finds that ratio of MU to price in case of X is higher than in case of Y. Explain the reaction of the consumer. 3-mark question. 10th answer. A consumer consumes only two goods, X and Y. At the consumption level of these goods, कोई certain level होगी consumption पे. At consumption level of these two goods, दोनों goods इकट्ठे consume हो रहे हैं. He finds that the ratio of MU to price, the ratio of MU to price in case of X is higher than in case of Y, greater है. Explain the reaction of the consumer. You need not make the diagram. आपको डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. You will explain like at a certain level of consumption when MUX by, you are not writing this, you just listen out. When MUX by PX is greater than MUY by PY, the consumer is not at equilibrium. He will change his level of consumption such that he will get the maximum level of satisfaction. At this consumption level, he gets more satisfaction by attaining the consumption of X. So he will consume more of X and less of Y. Due to the application of law of DMU, MU of X will fall down. Due to decrease in MU of X, the equilibrium strikes when ratio of marginal utility and price of respective two commodities equates. ये 3-marker क्वेश्चन है. डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है. Rational consumer will consume more of X and लेस ऑफ वाई. ये ब्रैकेट में लिख देते हैं, ज़रूरी नहीं है वाई को कम करना, वो कंपैरिजन में है. एक्स को बढ़ाना है तो वाई को कांस्टेंट रखो, इसका मतलब या कम कर दो अगर कम कर सकते हैं तो. वंस यू हैव कंज्यूम समथिंग, हाउ विल यू डिक्रीज द कंजम्पशन? सो इट इज इन कंपैरिजन. एक्स की कंजम्पशन ज़्यादा होगी तो MUX कम होगा. वाई? Law of DMU. Process will continue
till MUX by PX equate MUY by PY, that is equilibrium strikes. This is how you are supposed to attempt it. For more reference आप पेज 23 रेफर कर सकते हैं. रेफर पेज नंबर 23. उस पर एग्जैक्ट डिटेल्स गिवन है कैसे अटेम्प्ट करना है. 3 मार्कर है तो डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है. डायग्राम नॉट रिक्वायर्ड. पेपर में ये मत बना के आ जाना, इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है. यू आर मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन नंबर 12th. What will a rational consumer do if price of commodity X falls and price of commodity Y remains same? एक रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा जब X का प्राइस कम होगा और Y का प्राइस सेम रहेगा? ये आप खुद सोचिए, अगर X का प्राइस कम हो रहा है तो X की डिमांड बढ़ेगी. हम सबको पता है जो चीज़ सस्ती हो जाती है उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं. X का प्राइस कम हो रहा है तो X की डिमांड बढ़ेगी. क्यों, कैसे? ये हमारी माइंड होता है. 10% ऑफ हम डिमांड कर देते हैं ज़्यादा. इसका रीज़न है फंडामेंटल ऑफ साइकोलॉजी, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनलिटी. चेक कीजिए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है. MUX बाई PX इक्वल MUY बाई PY. Price of commodity Y remains same, price of commodity X falls. Price of good X falls. X का प्राइस कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है. The situation will be this. देखिए, न्यूमिनेटर कम होगा तो पूरी कंडीशन कम हो जाएगी, पूरी वैल्यू. डिनोमिनेटर कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. सो इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर कम हो रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी. इसको मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं. यहीं पर लाइक लेट इट बी, ये था 20, ये था 5 और ये था 4. 80 divided by 5, 16, राइट. इक्विलिब्रियम पे है, चेक करो. 4 इज इक्वल टू 4. अब प्राइस X का कम हो गया, प्राइस ऑफ गुड X फॉल्स. तो कंडीशन क्या बन जाएगी? 20/4, 16/4, 5/4 ग्रेटर हो गया. चेक कीजिए. ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ आपके माइंड की कैलकुलेशन है ताकि आपको पता चले MUX बाई PX ग्रेटर हो रहा है. और ये अब आपको पता है कैसे अटेम्प्ट करना है. तो ये मैं आपको करवा चुका हूँ. क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम होके आ सकता है. X का प्राइस बढ़ गया, X का प्राइस कम हो गया, Y का प्राइस बढ़ गया, Y का प्राइस कम हो गया. इन चारों केसेस में आप बताइए कंज्यूमर का रिएक्शन कैसे रहेगा. 12th क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला हुआ है, व्हाट विल अ रैशनल कंज्यूमर डू इफ द प्राइस ऑफ गुड X फॉल्स एंड प्राइस ऑफ गुड Y रिमेन सेम. X का प्राइस कम हो रहा है तो कंडीशन ये बनेगी. ये मैंने एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल. पेपर में कुछ ऐसा रहेगा. नाउ दिस इज ग्रेटर, X की कंजम्पशन बढ़ेगी, MUX कम होगा ड्यू टू लॉ ऑफ DMU.
प्रोसेस विल कंटिन्यू, ये प्रोसीजर कंटिन्यू रहेगा कब तक? टिल MUX by PX equates MUY by PY, that is equilibrium strokes. Diagram not required. This you want to you make right अपनी रेफरेंस के लिए कि अगर प्राइस पहले था इक्विलिब्रियम, ये कम हो गया, एक्स का प्राइस कम हो गया 5 से 4, दिस इज ग्रेटर। इसके नीचे हम नोट दे देते हैं। अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा, सिचुएशन कंज्यूमर्स रिएक्शन, कंज्यूमर का क्या रिएक्शन रहेगा? सिचुएशन 1, एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, मतलब एक्स की कंजम्पशन कम होगी या वाई की कंजम्पशन बढ़ेगी। एक्स का प्राइस बढ़ गया, एक्स की कंजम्पशन कम। सिचुएशन 2, एक्स का प्राइस कम हो रहा है, जो हमने अभी किया था, एक्स का प्राइस कम हो रहा है तो एक्स की कंजम्पशन बढ़ जाएगी या वाई की कंजम्पशन कम हो जाएगी। ये जो कंजम्पशन कम कर रही है वो चॉइस होती है, बिकॉज वंस यू हैव कंज्यूम समथिंग यू कैन नॉट डिक्रीज द कंजम्पशन। इफ यू कैन यू वुड, इफ यू कैन नॉट यू विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द अदर, बिकॉज इनकम इज लिमिटेड। तो आप सब कुछ नहीं कंज्यूम कर सकते जो आप करना चाहते हैं। थर्ड, अगर y का प्राइस बढ़ गया, y महंगा हो गया तो y की कंजम्पशन कम हो जाएगी और x की कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जब y महंगा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? y की डिमांड कम कर देंगे। बट अगर आप y की डिमांड पहले ही इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं तो आप x की डिमांड बढ़ा देंगे टू रीच इक्विलिब्रियम। फोर्थ, y का प्राइस कम हो गया, y सस्ता हो गया तो y की कंजम्पशन वेरी गुड बढ़ जाएगी, x की कंजम्पशन कम हो जाएगी। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एनी क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम आउट ऑफ दीज 4। हाउ यू आर सपोज टू अटेम्प्ट इट? नॉट लाइक दिस इज जस्ट अ ब्रीफ आइडिया। आपको हम पेज 23-24 पे पूरा लिखवा चुके हैं। आपको ये कंडीशन ऐसे ज़रूर मेंशन करनी है कि MUX ग्रेटर है या MUX लेस है, MUY ग्रेटर है या MUY लेस है। दिस यू आर सपोज टू एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14th, question number 14th. What happens when MUX by PX is not equal to MUY by PY? दोनों केसेस एक्सप्लेन करने हैं 4 मार्कर में। 2 cases need to be explained. First, MUX by PX greater than MUY by PY. Second, MUX by PX less than MUY by PY. 4 मार्कर 2 केसेस। सो डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर मोर रेफरेंस यू मे रेफर पेज नंबर 23 and 24.
Obviously, you are supposed to explain the introduction. Consumer is said to be at equilibrium when MUX by PX is equal to M. जो हमने 23 पेज पे इंट्रोडक्शन दी है ऑलरेडी, वो तो आपने एक्सप्लेन करनी ही करनी है. क्वेश्चन नंबर 15th. A consumer consumes two goods, X and Y, and is in equilibrium. Price of X falls. Explain the reaction of consumer through utility analysis. X का प्राइस कम हो रहा है, सेम थिंग. X का प्राइस कम हो रहा है तो X की डिमांड बढ़ेगी. 4 मार्कर है तो यू हैव टू एक्सप्लेन मोर. यू मे मेक डायग्राम क्योंकि एक ही केस है. रेफर क्वेश्चन नंबर 12. Explain condition MUX by PX greater than MUY by PY. क्योंकि क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दें, X का प्राइस कम हो रहा है, Y के बारे में कुछ नहीं लिखा. क्योंकि Y के बारे में कुछ नहीं लिखा मतलब Y का प्राइस कांस्टेंट है. डायग्राम इफ रिक्वायर्ड. अगर आपको लगता है कि आप लेंथ प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं 4 मार्क्स के हिसाब से तो ऑब्वियसली आप डायग्राम बनाएंगे. यू विल मेक द डायग्राम इफ यू थिंक द लेंथ इज नॉट प्रॉपर. क्वेश्चन नंबर 17th. A consumer consumes only 2 goods. Explain consumer equilibrium with the help of utility analysis. 6 मार्कर क्वेश्चन. यहाँ 4 है तो छोटा लिखेंगे. नॉर्मली ये 6 मार्कर में भी आता है. पहले आप डेफिनेशन देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. डेफिनेशन: consumer is said to be at equilibrium when he gets the maximum level of satisfaction within the limited level of income on 1 or 2 goods. If a consumer is consuming 2 goods, he will attain the equilibrium when the following conditions satisfied: MUX by PX equal MUY by PY. उसके बाद आप कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे. MUX by PX equal MUY by PY. जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंडीशंस पूछा हो, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कंडीशंस पूछा हो तो आप ग्रेटर देन एंड लेस देन भी एक्सप्लेन करेंगे. शेड्यूल, डायग्राम. ये 6 मार्कर क्वेश्चन है. दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन. आप कोई एक चीज कट कर सकते हैं क्योंकि 4 मार्कर है. जो नोट्स में है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है तो इतनी ज़्यादा लेंथ बनाने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू से इतनी लेंथ बना लेंगे, आई डोंट माइंड, बट पेपर कंप्लीट नहीं होगा. पेपर बाद में ही आपका कुछ ना कुछ मिस होगा. सो आई विल सजेस्ट यू, आई रिपीट, आई विल सजेस्ट यू टू ईदर स्किप दिस कंडीशन, ग्रेटर लेस मत लिखो, या इसको ब्रीफ में छोटा एक्सप्लेन कर दो. डायग्राम मत बनाओ, शेड्यूल मत बनाओ, डायग्राम बना दो. इन दोनों में से एक चीज चलेगी, एनीवन. तो मैं सजेस्ट करता हूं लेंथ एज पर मार्क्स. ये टोटल फुल फ्लेज क्वेश्चन है. पहले डेफिनेशन, फिर कंडीशन, ग्रेटर लेस एक्सप्लेन करो, उसको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दो. हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा है एक्सप्लेन द कंडीशंस, आई रिपीट, अगर क्वेश्चन में कंडीशंस पूछा है तो आपने ग्रेटर और लेस देन एक्सप्लेन करना है. MUX by PX इज नॉट इक्वल टू MUY by PY, या 1 कमोडिटी केस में MUX इज नॉट इक्वल टू PX, अगर कंडीशंस पूछा है. बट इस क्वेश्चन में कंडीशन नहीं पूछा तो दीज आर द 4 थिंग्स. ब्रीफ करके मार्क्स के हिसाब से लेंथ बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर
18th. Question number 18th. A consumer consumes only two goods, X and Y, whose prices are 4 and 5 respectively. Price of X is rupee 4, price of Y is equal to rupee 5. If the consumer chooses a combination of two goods when MUX equal 5, MUX is equal to 5 and MUY is 4, is the consumer in equilibrium? 4 marker question. क्या consumer equilibrium पे है? Why or why not? What will a rational consumer do in this situation? Use utility analysis. यही question indifference analysis में भी आ सकता है. Next chapter. यहाँ पे specifically utility analysis बोला हुआ है. Means we are doing consumer equilibrium utility approach. अब क्वेश्चन में ये 4 इंफॉर्मेशन गिवन है. पूछा है क्या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, अगर है तो गुड, नहीं तो क्या वो रैशनल कंज्यूमर करेगा. यू विल अटेम्प्ट इन द एग्जाम लाइक दिस. कंज्यूमर विल अटेन इक्विलिब्रियम when he chooses the combination of goods such that MUX by PX equal MUY by PY. Here 5 by 4, 4 by 5, 1.25, 0.8. Thus, consumer is not at equilibrium state. Consumer equilibrium पे नहीं है. Now, consumer should MUX other consumer should increase the consumption of X and decrease the consumption of Y so that he can attain maximum satisfaction, that is reaches the equilibrium state. 4 marker question, numerical question from the 2 commodity case. मेन आंसर क्या है कि क्या वो इक्विलिब्रियम पे है. क्वेश्चन में वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अंडरलाइन. अगर नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे x की कंजम्पशन बढ़ानी चाहिए. इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x, अंडरलाइन. टीचर का ध्यान सिर्फ 2 चीज़ों पे जाना चाहिए. द कंज्यूमर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ x. प्रेजेंटेशन इज गुड. इस टाइप के क्वेश्चन में लेंथ मैटर नहीं करेगी क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है. इन न्यूमेरिकल लेंथ डजंट मैटर, इट इज़ योर प्रेजेंटेशन टेक्निक, कैसे अटेम्प्ट किए. क्वेश्चन नंबर 19th. ओके, पहले 19 से पहले व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हम 20th कर लेते हैं. 20th इज अ शॉर्ट क्वेश्चन. पहले 20 करेंगे फिर 19th पे मूव करते हैं. अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स A and B and is in equilibrium. Show when the price of good B falls, demand for B rises. जब B का प्राइस कम होता है तो B की डिमांड बढ़ती है. आंसर दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. क्यों? MU of A, P of A
इज इक्वल टू एम यू ऑफ बी अपॉन पी ऑफ पी। बी का प्राइस कम हो रहा है, प्राइस ऑफ बी फॉल्स, ये डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो what would be the condition? mu of a by p of a is greater than mu of b by p of b. More satisfaction by consuming b, गुड बी की डिमांड बढ़ेगी जिससे mu of b कम होगा, लॉ ऑफ DMU, he will reach equilibrium। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था कि डिमांड बढ़ेगी बी की। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम इज रिक्वायर्ड, यस इट इज, बिकॉज क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क कि बी का प्राइस कम होगा तो सेटिस्फैक्शन उससे ज़्यादा मिलेगी तो हम बी की डिमांड बढ़ाएंगे, या एक ही कम करेंगे बट उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, ना बोला गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19th। फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल कंप्यूट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इफ px इज इक्वल टू 3, प्राइस 3 है, पी वाइज 2, वाई का प्राइस 2 है, कंज्यूमर इनकम इज 21, इनकम को एम लिखते हैं, हम अगले चैप्टर में इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर की जो इनकम है, कंट्री की इनकम नहीं, नेशनल इनकम नहीं, कंज्यूमर की इनकम को एम लिखते हैं, इट इज 21। कंजम्पशन 1 2 3 4 5 6 7, MUX 15 12 9 6 3 0 and -3, MUY 11 10 9 8 7 6 5। क्वेश्चन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा है बट MUM नहीं गिवन। द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट MUM। When does equilibrium strikes? किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक करता है? MUX by PX is equal to MUY by PY is also equal to MUM। 15 by 3 क्योंकि PX 3 है, 5, 12 by 3 4, 9 by 3 3, 6 by 3 2, 3 by 3 1, 0 by 3 0 0, -3 by 3 -1। This is MUX by PX। Now MUY by PY 11 by 2 5.5, 10 by 2 5, 9 by 2 4.5, 8 by 2 4, 7 by 2 3.5, 6 by 2 3, 5 by 2 2.5। This is MUY by PY। अब इक्विलिब्रियम कब आता है? जब MUX by PX इक्वल MUY by PY इज इक्वल टू MUM। क्वेश्चन में MUM तो गिवन ही नहीं है, तो MUX by PX इक्वल MUY by PY। देखते हैं, ये इक्वल आ रहे हैं, तो
combination 1, consumer is at equilibrium when MUX by PX equal MUY by PY. अभी नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे. केस 1, कॉम्बिनेशन 1. One unit of X and 2 units of Y. 1 unit of X and 2 units of Y. Combination 2. This and this. इक्विलिब्रियम एक ही सिचुएशन पे आएगा जब MUX बाई PX इक्वल MUY बाई PY हो, पर ये या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या ये कॉम्बिनेशन होगा. 2 units of X and 4 units of Y. अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो ये हो सकता है. कॉम्बिनेशन 3. Three units of X and 6 units of Y. So the bundle is 1 2, the bundle is 2 4, the bundle is 3 6. 1 2 2 4 3 6. तीनों में से कौन सा आंसर है? और तो कुछ नहीं है ना, 2 2 तो बन नहीं रहा. Consumer is said to be at equilibrium. Listen, consumer is said to be at equilibrium when he gets the maximum level of satisfaction within the limited level of income. Limited income के बीच में से. अब बात आती है income की. Consumer is said to be at equilibrium with this within limited income. अब हमें ये देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर इनकम पूरी तरीके से स्पेंड हो रही है, कहां पर इनकम पूरी तरीके से खर्च हो रही है. दिस 1 यूनिट ऑफ X, हम X ले लेते हैं टॉफी, Y ले लेते हैं बबल गम. टॉफी 3 रुपीज की है, बबल गम 2 रुपीज की है. आप एक टॉफी ले रहे हैं और 2 बबल गम ले रहे हैं. आप एक टॉफी ले रहे हैं, आप 2 बबल गम ले रहे हैं, तो आप कितना खर्च कर रहे हैं? टोटल स्पेंडिंग 1 टॉफी 3 रुपीज, 2 बबल गम 2 रुपीज. So 3 + 4 7 रुपीज. आपके पास 21 रुपए हैं, आप 7 रुपए खर्च कर रहे हैं. आप इक्विलिब्रियम पे नहीं है. अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. तो आप और कंज्यूम करना चाहेंगे. दिस इज समथिंग लाइक यू हैड सम पॉपकॉर्न एंड अ सिप ऑफ कोक. यू आर सेटिस्फाइड बट यू हैव मनी, यू कैन स्पेंड मोर बिकॉज दोनों की डिमांड अभी बढ़ेगी. आप पॉपकॉर्न भी और कंज्यूम करेंगे, पेप्सी भी और लेंगे. तो इस सिचुएशन में खर्चा कितना हो रहा है? 2 टॉफीज 2 × 3, 4 बबल गम्स 4 × 2, 6 रुपीज खर्च हुए टॉफीज पे, 8 रुपीज खर्च हुए बबल गम पे, 14 रुपए. अभी भी आप इक्विलिब्रियम पे नहीं है, 21 रुपए खर्च करने हैं. कॉम्बिनेशन 3, टोटल स्पेंडिंग 3 यूनिट्स ऑफ X, 3 × 3, 3 रुपए की टॉफी, 3 टॉफीज 9 रुपए. 2 रुपए की बबल गम, 6 बबल गम 12 रुपए.
एंड यू स्पेंड 21 रुपीज। चेक कीजिए 21 वहीं पर आ रहा है जहां पर MUX PX के इक्वल है। सो कॉम्बिनेशन 3 हमारा आंसर है। यू विल राइट consumer will be at equilibrium when he attains maximum satisfaction, full stop. It will occur when he will consume 3 units of X and 6 units of Y. Here MUX by PX equal MUY by PY equal 3 and his total income is spent. सारी इनकम खर्च हो चुकी है। अब आप सोचेंगे ज़रूरी है सारे पैसे खर्च करने हैं? ये सारे पैसे नहीं है। उसकी जेब में 100 रुपये का नोट था, उसने सोचा था वो 21 रुपये खर्च करेगा, तो गुड एक्स और गुड वाई के लिए तो 21 रुपये की ही इनकम हुई ना। जैसे अगर मेरी जेब में 2000 का नोट है और मैं टॉफ़ी और बबलगम लेने जा रहा हूँ, इट डज़ नॉट मीन मैं 2000 की ही बबलगम और टॉफ़ी लूँगा। मेरे माइंड में 50 रुपीज़ की लेनी है, तो 50 रुपीज़ इज़ माई इनकम ऑन दीज गुड्स। वैसे टोटल यूटिलिटी पूछा नहीं क्वेश्चन में, मैं एक बार आपके लिए कंप्यूट कर देता हूँ। मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी एट इक्विलिब्रियम, टोटल यूटिलिटी एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? सिग्मा MU, MU ऑफ X, X कितना कंज्यूम कर रहे हैं? X वो कंज्यूम कर रहा है 3 यूनिट्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 15 प्लस 12 प्लस 9 प्लस Y कंज्यूम कर रहा है 6, इट वुड बी 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6. So the total utility is sigma of marginal utility. Marginal utility of X is 36, I guess, if I'm not wrong. And here it is 11 plus 10, 21, 30, 38, 45, 51, I suppose. 20, 30, 45, 51, right. So the total is 87 यूटिल्स। ये दोनों कॉमोडिटीज़ को अगर कंज्यूमर इकट्ठा कंज्यूम करे, आई रिपीट, ये दोनों कॉमोडिटीज़ को अगर कंज्यूमर इकट्ठा कंज्यूम करे साइमल्टेनियसली, तो उसकी सेटिस्फेक्शन रहेगी 87 यूटिल्स। उससे कम होगी तो उसके पैसे बच जाएंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकती क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। इससे ज़्यादा यूटिल्स पे पहुंचने के लिए उसको पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, इससे कम यूटिल्स पे उसके पैसे बच जाएंगे। सो ये उसकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रहेगी। We are done with all the questions. Now I want you to please come over to page 22. I want you to see page number 22. Okay, I'm giving you 1 minute. पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। I think आपने साथ साथ नोट नहीं किया होगा। I'm giving you complete 1 minute to समझ लीजिए, बाद में अपने आप नोट कर सकते हैं आप, या साथ साथ नोट कर लीजिए। स्पीड अप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 minute.
Speed up boys, speed up girls. I know the question is lengthy, chances कम है ऐसा क्वेश्चन आने के। +1 में जब +2 में माइक्रो इकोनॉमिक्स होती थी तो क्वेश्चंस टेक्निकल आते थे, +1 में डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं, बट इट इज़ माई मॉरल ड्यूटी कि आपको हर चीज़ एक्सप्लेन की जाए। सो हियर वी गो। चलिए पेज नंबर 22 पे आइए, प्लीज कम टू पेज 22। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रहा है पेज 22 पे। वो डायग्राम आपने गुड एक्स और गुड वाई अलग अलग बनाया है, अगर आप ध्यान दें। आपने कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाया, दिस इज फॉर गुड एक्स, दिस इज फॉर गुड वाई, राइट? यही डायग्राम है। कई टीचर्स, कई ऑथर्स इसके बजाय कोई और डायग्राम प्रेफर करते हैं। वो डायग्राम होता है जिसमें दोनों कॉमोडिटी एक ही डायग्राम में बने। सो यहाँ पे आपने वो डायग्राम बनाया हुआ है पेज 22 पे। यहाँ पे ये जो रफ पेज है, यहाँ पे हम ये डायग्राम बनाएंगे। जस्ट आपका माइंड ओपन रहे कि ओके, इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ट्वेंटी टू पे देखिए इक्विलिब्रियम कहाँ आ रहा है। 22 का जो शेड्यूल गिवन है उसमें इक्विलिब्रियम आ रहा है 3 यूनिट्स ऑफ y एंड 4 यूनिट्स ऑफ x। 3 यूनिट्स ऑफ y एंड 4 यूनिट्स ऑफ x, दोनों को प्लस करो, कितना बना? 7। तो आपको 7 बंडल तक जाना है, आपको 7 यूनिट्स तक का एक शेड्यूल डायग्राम बनाना है। हियर वी हैव इज MUX एंड MUX अपॉन PX, और यहां पे आ जाएगा यूनिट्स कंज्यूम्ड ऑफ गुड एक्स। MUX बाय PX 6 तक है, सो इट वुड बी 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा गैप रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। यूनिट्स कंज्यूम्ड 7 तक लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 7 तक लेके जाना, सो इट वुड बी 1 2 3 4 5 6 7, राइट? क्लियर? This is good X units। हम मिरर इमेज बना रहे हैं। ये डायग्राम थोड़ा टिपिकल है, टेक्निकल है, बट इट इज़ माई ड्यूटी टू एक्सप्लेन दिस ऑल्सो, ताकि कल को अगर आपको कोई टीचर पढ़ाए, कल को आप MA इन इकोनॉमिक्स, BA इन इकोनॉमिक्स में जाए, इकोनॉमिक ऑनर्स में जाए, आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि उस टाइम कॉलेज के टीचर्स आपको बोलेंगे ये तो आपने पहले पढ़ा ही हुआ है। अब बिल्कुल मिरर इमेज, अब ऐसे एक्सिस जाएंगे। दिस इज द y एक्सिस ऑफ गुड y एंड दिस इज द x एक्सिस ऑफ गुड y। हियर वी हैव इज MUY by PY and here is 0 1 2 3 4 5 6 7। Here we have is good y units like this। So ये डायग्राम है
x का और ये डायग्राम है y का, और साथ में चाहिए MUM। अब हम ड्रॉ करेंगे बाय दिस गुड x। लेट्स प्लॉट इट। 1 per 6, 1 per 6, for 2 it is 5, for 3 it is 4, for 4 it is 3। अब यहाँ पर आप में से जिन बच्चों को ये डिफ़िकल्ट लग रहा है आप छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, हमने इजी वर्जन किया हुआ है। डिफ़िकल्ट इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो द वे यू कैन डू इट। 5th पे इट इज 2, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व MUX बाय PX। 7 तक क्यों लिया था? क्योंकि इक्विलिब्रियम 3 और 4 आ रहा था 7 पे। अब ऐसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 if I'm not wrong, 5 and 6। Now we'll plot like this। ये वाला एक्सिस देखना है। For 1 it is 5, for 1 it is 5, for 2 it is 4, for 2 it is 4, for 3 it is 3, for 3 it is 3, for 4 it is 2, for 4 it is 2, and for 5 it is 1, for 5 it is 1। इसको ज्वाइन करेंगे and this is MUM 3 and this is the point of equilibrium। अगर आप easier वर्जन पे ध्यान दें, 22 पेज पे जो easier वर्जन है उसमें दो E आ रहे हैं, एक गुड X का ही, एक गुड Y का ही। इक्विलिब्रियम, कई इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इक्विलिब्रियम तो एक ही पॉइंट होता है, इसलिए ये मिरर इमेज डायग्राम बनाया जाता है। दिस इज द इक्विलिब्रियम। Equilibrium structs at MUX by PX equal MUY by PY is equal to MUM is equal to 3 utils, that is 4 units of good X and 3 units of good Y। This is the another version of explaining the same thing। We are done with the chapter. The next chapter will start from statistics. We are done with 2 chapters of microeconomics. Thank you very much. Bye bye. God bless.